Aman Ali Bangash is the eldest son and disciple of Sarod Maestro Ustad Amjad Ali Khan Sahab and the grandson of the legendary Ustad Hafiz Ali Khan Sahab. He belongs to the 7th generation in an unbroken chain of Senior Bangash school. He was initiated by his father into the fine art of Sarod playing and gave his first public performance at age 8. Aman's musical style is marked by its precision and tunefulness, bold and resonant strokes, along with tradition and continuity of Indian classical music. Aman's performances have evoked creditable applause. Today, Aman is considered one of the finest Sarod players in the world and has obtained a very special place for himself among music enthusiasts across continents. He is an inspiration for the younger generation of musicians. He continues to enchant audiences with his virtuosity, sheer brilliance, and charismatic stage presence. Good evening, everyone. Thank you so much for joining us on another episode of Tell Me About It. It's very special this evening. We have... you know who we have with us. We have one of the best, I can easily say one of the best Sarod players of this country, and a very dear, very, very dear Aman Ali Bangash Bhai. And we are honored and proud to have him in our chat show today. I can say a few things right now because I know when Aman Bhai comes into the chat room, he won't allow me to say all those things. I really wanted to write Ustad Aman Ali Bangash, but Aman Bhai said Ustad is not something that he wants to be referred as at this moment, of course. But and they say a picture can speak 1,000 words. But when I see these pictures of Ustad Ji and Aman Bhai and all those years and learning Sarod and going through all that learning process, it gives me goosebumps when I see all these artists performing on stage. I won't take a lot of time. Let's welcome our very dear Aman Bhai into the chat room. Namaskar, Aman Bhai. Thank you so much for joining us. Aman Bhai, your voice is not... I can't hear you. I can't hear your voice. This seems to be something wrong with the microphone. Maybe you can just remove the earpods and let's see then. Because I can't hear you. I don't know if the people who have joined us can hear you. Maybe somebody can comment and we can know, because I can't hear you. In the meantime, I'll take some messages. Mahuaji says, Adab Aman Bhai and welcome to TMI. We are highly honored to have you. Namaskar Ini Bhai. Thank you, Mahuaji. Thank you so much. Kumar Aryanji says, this is going to be awesome. Thank you so much. This is awesome, seeing Aman Bhai there. People are telling Aman Bhai, we can't hear you. No, we can't hear Aman Ji. So there was some disturbance. Maybe you can try in your sound, there's a setting underneath, camera and mic. Yeah, and then now it says mute. No, now it's working, I think. Yeah. Yeah, now? Yeah, we can hear you. Thank you so much. Again, I'd like to thank you so much for joining us. And it's such a pleasure and honor to have you, Aman Bhai, here. Thank you. And so there are a lot of comments already but because if I start reading all of them, we'll probably end our time in just reading the comments. I'll just take some. Nikita from Bombay says, Namaskar, Namaste Amanji and Iniji, so good to see you here. I know Nikita, she's a fantastic, amazing dancer. I know her. She's a very nice person. Thank you, Nikita. Mithilesh Bhai says, hello Bhaijan, good to see you. Unko to namaskar.
Thank you, Yes, Mithilesh bhai. नमस्कार Thank you so much for joining. We had a lot of fun the other day when Mithilesh bhai was जी there. All we were doing जी was making bangan ka bhurta and all that. जी There are a lot of people joining. Lakshmaji Rao ji says, uh, we can't hear Aman bhai, nahi. That was old. Lakshmi Rao Saab is from ICCR. He's in Hyderabad. He's from there. my So, नमस्कार जी yes, everything is working perfectly now. Tina ji says, Namaskar, Aman ji. She's a huge fan of yours, I नमस्कार believe. yeah She's been. I know Tina. She's been very nice to me and very kind, and always keeps sending me all the nice all my bad photographs. She makes it good and sends it to me. You're too kind. But some of those are taken by me also, so I don't know if those were bad too. अब आपकी तारीफ क्या करें हम मतलब आपको नहीं, you have crossed Baijan, that it's not. level of तारीफ touch wood you anyway I would say because I'm on your show not to just make you hear things that you should be hearing, but the truth is that a lot of Indian classical musicians and dancers would always thank you for I think for preserving all those moods and all those great concerts that one has done of the great legends also. So I think you're doing a big service to the Indian classical field, for the Indian classical Thank you field. so much. Thank you. I'm just trying, Iman and sir, I just Dil get se, lucky Dil sometimes. se, Thank you so much. Thank you so much, Dil Baijan. se. Coming from you means a lot. Again, there are a lot of comments kept, they're just coming and coming. We'll take those probably later on. Yeah, आराम से, And आराम से. मुराद भाई says, आदाब अमान भाई, बहुत आपको tell me बहुत about it. इस series पर देखकर बहुत खुशी हो रही है, माशाअल्लाह, आपका खैर मकदम है भाई. नहीं उनको मेरा बहुत I बहुत always, आदाब मुराद भाई को. I'm a big fan of his music also, and I really love the way he plays, his tone of his sarangi, and I really love him and Fateh Bhai, both of them. And Baijan, I feel very this is no something दिल से कह about रहा you हूँ that मैं. everybody loves, and No, and but that's the. I'll tell you, Murad bhai की बात अगर उठी है, तो I'd gone to, I think, Vineet bhai and his wife were performing in जी Shri में एक आलाप लिया था इन्होंने सारंगी में. It was a जी. recorded piece, but the tone was so beautiful, and I tell you, he's really blessed to have that tone in his hand. I'm sure And Murad he's bhai a must be. and he's a great human. We see what happens also, Baijan. Music is a very secondary thing. If जी you are a good person by nature, the music reflects. It reflects onto जी. music. So it's मेरा तो एक ही लॉजिक है, हार्ड वर्क करो, मस्ती में रहिए, सबका अच्छा जी. सोचिए और कहिए, बस और कुछ नहीं है. Yeah, that Life is is too short. probably the reason that everybody loves you. I mean, people have been, I'm getting messages sending love to you, and No, thank I you. mean, so many. Mahua ji says, "Oh my God," I don't know in what context, but obviously, आपको देख के ही सारों का "Oh my God" हो गया होगा, and you won't believe it. Thank you. I'm Thank you. hosting, I think, my 30th or 25th or 26th show, but I'm very nervous today. So, अरे नहीं भाई प्लीज आप ऐसे आपके मत साथ बोलिए. वैसे भाईजान, आपके साथ वैसे बैठ के 2 घंटे वैसे बातें हो जाएं, बट दिस इज गलती नहीं होनी नहीं, चाहिए I यहाँ mean, पे. I think I've also lost the touch of speaking and playing because I think 6-7 महीने से सब घर बैठे हुए हैं और स्टेज जी और बातचीत करने का पूरा हिसाब किताब. So I'm also kind of bit conscious today. I don't know for some reason. So yeah. आई एम श्योर आपका तो अमान भाई सेंड्स यू हिज ग्रीटिंग्स. Please उनको भी मेरा आदाब बहुत अमान बहुत भाई. Anyway, नमस्कार आदाब जी. I love him. He's a great. He's also playing so well. I mean, we all are एक ही उम्र के हम सब, and I think he's also doing fantastic. So I feel so proud of everybody actually. प्रियंका जी सेज आप और आपकी हाँ सोच जी. लाजवाब है मानुषी. मैं वही सोच रहा हूँ अगर मैं Thanks her पढ़ता also. रहूंगा तो I'll just So I become think a you should news get reader. on. नहीं, you should थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर उसके बाद we'll again come back to जी जी बिल्कुल. you can do that. भाईजान मैं आई वांटेड टू ऑब्वियसली अब मेरे को समझ ये भी नहीं आ रहा कि मैं पूछूं क्या, क्योंकि हमारी तो मैंने उस्ताद जी से बहुत बार ये क्वेश्चंस किए, एंड देन इफ समबडी गोज एंड सीज द डॉक्यूमेंट्री दैट वाज मेड बाय गुलजार साहब उस्ताद जी की, जी. it has my main source of information is that documentary. उसमें जी. मैंने इतनी चीजें, उसमें मैं एक सवाल आपसे करना चाहता था उसमें, बिकॉज एक मैंने उसमें सीन देखा है जिसमें काकी माँ बैठ के चाय बना रहे हैं, उस्ताद जी कम्स एंड आस्क्स बच्चे स्कूल चले गए, एंड रियाज किया था, एंड ही आस्क्स जी. दैट, एंड आई एम लाइक कि हम तो 7 बजे स्कूल चले जाते थे, तो उससे पहले भी आप लोग रियाज करते थे, आई मीन अर्ली इन द मॉर्निंग.
पता है क्या होता है कि एवरीथिंग ओवर द इयर्स गेट्स मोर ग्लोरिफाइड, बट टू बी ऑनेस्ट वो पूछते इसलिए थे क्योंकि उनको पता था बड़ा वाला नहीं करेगा रियाज. So Ayan bhai was always the nice correct boy and I was always the badmash of the highest order. तो जहाँ अब्बा की नजर लेफ्ट हो गई तो I have disappeared from the music room. I'm playing cricket with my friends, playing football with them. So I think realization तो सबको आ ही जाती है लाइफ में कभी ना कभी. But I think as in my initial years जब मैं 6-7 साल का था, I think my younger brother अयान भाई में एक कहते हैं ना एक घराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें पहले आ गई मुझसे थोड़ी. जी. इसलिए उन्होंने शादी भी पहली कर ली. अब अगर आप देखें अभी शादी भी तो क्या था मेरे अंदर थोड़ा लेट आया लेकिन फिर दुरुस्त आया. देन आई टुक इट अप वेरी सीरियसली बिकॉज आई फील आप अगर सच में कहते अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो एक होता है कहना, एक होता है उसको सच्ची मानना. इफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर फादर एंड मदर्स ड्रीम, व्हाट हैव दे ड्रीम्ड फॉर यू, अगर आप उसको पूरा कर सके एंड यू एंजॉयिंग इट, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन गिव बैक टू योर पेरेंट्स, you know. Very true. So वो एक realization by God's grace, I think my mother is very responsible. माँ का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, more than my father. And I think माँ ने, because my father used to travel, you know, father used to travel, and my mother used to make sure कि अयान रियाज कर रहे हैं अयान भाई, और अमान कर रहा है नहीं कर रहा है, because I was the one who had a problem. So and the same thing is being done today, touchwood, by Ayan bhai's kids. My friends, Zohan and Abir, I call them my friends, not my nephews. And Nima is doing the same thing. I think Ayan Bhai is also very lucky to have a lovely, wife like Nima. She's a sister to me, and she is also doing the same thing. Like, मैं कितने दफा घर गया हूँ, Nima, where is Ayan Bhai? Where are the kids? She's like, Aman Bhai, रियाज कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, फिर it's all good. So so this is the responsibility what my mother realized for my father. And the same way today, I'm happy that Nima has realized for this family. So it's a beautiful thing, Bhaijan. It's a good thing. And obviously, since you were growing up, the growing up days, you must have realized at a point that you belong to such a huge lineage. You know, you have such weight on your shoulders to carry that lineage forward. Because again, when I talk about Ustad Ji, I remember seeing one interview of Ustad Ji in which he says, I had the eagerness to have kids so that I could pass on my wealth, that was my music, and to my gharana. How did you take the pressure and grow up with that? Because because most of the people say, because aap ek you're a son of a legend, so you have that. But what they don't realize is that the children of a legend also probably have more pressure on them than what normal musicians or people who are not from the lineage would have. Anyway, it's very simple, it's an attitude problem in a good way. Basically, आपके attitude क्या है लाइफ में? मैं एक बात तो मैं पहले बोलना चाहूंगा, like to confess, and I've said it everywhere to everyone, कि if I was not Ustad Amjad Ali Khan Sahab's son, if I did not belong to this घराना, आज जो भी इज्जत अफजाई मिली है, जो भी 2% इज्जत अफजाई मिली है, लोगों का प्यार मिला है, इसको और अभी 25-30 साल लग जाते. So I've been a very fortunate child to be born as Khan Sahab's son, my father's son, because ऐसा नहीं कि टैलेंट की कमी है दुनिया में, बड़े बड़े अच्छे टैलेंटेड लोग बैठे हुए. तो so being his son, देखिए हार्ड वर्क का तो कोई शॉर्टकट है नहीं भाई. आप जरूर बजा रहे हैं, और एक जमाने में आपने तबला भी बड़ा धुआंधार बजाया हुआ है, तो आपको तो हार्ड वर्क का पता होगा मतलब क्या है. नहीं, I've heard your tabla. I mean, you have hidden it from the world, I guess, but I've heard you play. And so तो उसको सीरियसली नहीं लेना है. You should not take it कि मैं उनका बेटा हूँ तो नाम होगा, लोग सुनने आएंगे ही. It is about your hard work, how serious you're about your gharana, or not gharana. Gharana is a wrong word according to me, because I think music industry is a gharana. It has different shades. ये I don't believe कि यही एक चीज सही है और दूसरे का घराना गलत है और वो खराब है. मैं नहीं, सब ठीक है. आपसे कितना हो सकता है ये आपके ऊपर है. कोशिश करें कि आप सब कुछ निकालने की कोशिश करिए. एक जन्म में तो बहुत बड़ी बात है. So घराना, I don't believe in this concept, very to be very honest. But
हार्ड वर्क इज समथिंग जिसका यू कैन डुप्लीकेट इट। अब चाहे आप खान साहब के बेटे हैं या चाहे आप किसी डॉक्टर की बेटे हैं बेटी हैं, जो भी है, आपको मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी। और मेहनत के साथ मिजाज अच्छा रखना है, आपको शांत रहना है, मस्ती में रहना है, खुश रहना है। एंड यू नो इन आवर इंडस्ट्री आई गेट वेरी स्कैर्ड व्हेन आई सी पीपल पीठ पीछे, कभी हम सब ह्यूमंस है, निकल जाती है मुझसे कभी बात, लेकिन वो कोशिश हो कि वो ना हो, कि किसी की निंदा ना करें, बिकॉज समवेयर गॉड डजंट लाइक इट। आई फील वो फिर आपके काम को थोड़ा डिस्टर्ब कर जाता है। व्हेन आई लुक बैक एंड लुक एट पीपल कि इनका नाम हुआ, नाम नहीं हुआ, इतना अच्छा बजाते हैं, तो उसमें आपको जवाब भी दिख जाएगा। you'll find the answers in everything. Very true, very true. I'm not giving ज्ञान, but मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको। That is the most beautiful. एक question आपका मेरे मतलब का आया था, but वो उसको मैं बाद में लेता हूँ। एक Alaknanda ji was asking, what's your source of energies and input from your mom? I mean, I'm very happy that इन्होंने ये सवाल पूछा, क्योंकि एक दो इंटरव्यूज में माँ का नाम जिक्र नहीं हुआ और फिर उसका फिर रिपरकशंस काफी खराब था। मैं पहले माफी मांगूंगा। नहीं, so I think as a musician, as a human being, I think my father always says this, and not for, not to make it sound good or look good, or it's not a diabetic thing, but mother is the first guru, which I also truly believe that the person who gives you birth has the first right on you, on your life. So I think my mother has played and still plays a very immense role, and has to play a very important role in my life. And I'm very blinded about my mother and father and my brother when it comes to opinions or their suggestions. So for me, they are my best friends, And और माँ ने तो खुद एक भरतनाट्यम, माँ was a Bharatnatyam performer. She learned from the great Rukmini Arundel ji from Kalakshetra for 15 years. Though she belonged to a very comfortable family from Assam, from tea planters. तो उस चक्कर में मैंने भी थोड़ा बहुत ये सब, पताका, थ्री पताका, अर्ध पताका, कत्तरी मुख, मयूर, ये सब, शुक्र तो अराला शुक्र तुंद का मुष्टि शिखर कपित, ये सब माँ ने थोड़ा सिखाया जी। अरे वाह वाह, that's amazing. आपने अभी अयान भाई का नाम लिया, तो I have a small message from Ayan bhai for you. I'll just share it now. हाँ जी। Namaskar, Ini bhai, Adab Aman bhai. I'm sorry to gate crash this party. It's not easy to speak about a family member, and more so about your own sibling. I can only say that an artist like Aman bhai visits this planet only once in a few hundred years. God pretty much changed the mold after he was born. He's a great son and even a greater disciple. He's taken Abbas Saab's musical journey to such great heights. He has done things the way he did, in a way that only he could do. I think technically what he does is pretty much humanly impossible to do. And he has his own canvas, his own world. I think his greatness is yet to come. I don't think there's any musician or sarod player who's not inspired by him. He continues to inspire and excel in all his musical journeys and pathways. I can only hope and pray that inshallah he has a long life and all the happiness in the world. And I know that the years to follow will only be more greater and more interesting and more legendary for him as a musician. He's endeared by the planet, and that love and affection is, I think, the greatest wealth he has. So my pranams, my namaskar to him, and I just hope and pray that this pandemic is over soon, so that we are back on stage and we continue to do what we love doing and serve the people musically all over the world. That is so beautiful. I can't hear you again. We can't hear you again. Not yet. Maybe you can just try and mute again and then unmute again. This is unmuted. Yeah, now it's okay. Now it's working. So that's a beautiful message by Ayan bhai. बड़े दिनों के बाद इतना प्यार से भाई ने तारीफ करी मेरी, तो I'm very happy. He's my best friend. He's a sweetheart, and he himself is. अभी ऐसा नहीं कि दोनों भाई एक दूसरे की तारीफ करें इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन
ही इज माई रेफरेंस पॉइंट बिकॉज वो मेमोरी बहुत कमाल है अयान भाई की. बहुत ही मीठा और बहुत ही खूबसूरत हाथ है उनका. और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एज अ ब्रदर. एंड शायद उनके वजह से मैंने रियाज भी काफ़ी किया, क्योंकि उसको देखकर मैं सोचता था भाई को, अरे ही इज प्रैक्टिसिंग सो मच एंड आई डोंट प्रैक्टिस एट ऑल, यू नो. So then I think we both inspired each other to we're still bringing up our game. कोशिश तो ये कि हर प्रोग्राम अच्छा हो और लोगों तक पहुंचे, and people can start loving our music. That's a, you know, to love someone is much more important than to be just popular or, you know, play good, very great music. You have to be loved and to be accepted by the country or bahar jo bhi hai. Gee. And people also find that you know, when they've met you and they've met Ayan bhai, you're quite after the concert, or I've seen in modern school जब वो स्वामी हरिदास फेस्टिवल होता है उसके बाद हरिदास स्थान, you know, everybody is very you're easily approachable. They can come to you, they can take pictures, they can take selfies, and it's not very, you know, okay, you know, like I said, approachable. I'm just going to take that question जो बीच में आया था, मुराद भाई ने किया था, which was I was laughing when I saw that question. So I was like, अमान भाई आपकी शादी का इंतजार सालों से हो रहा है भाई. I think जोहान अबीर की बात करूंगा मैं. नहीं भाईजान उसमें तो बहुत no, I did come. I think it's a आप तो मेरे अपने हैं तो उसमें कोई नहीं. I did come close to marriage once, long time back. And for some reason नहीं हुआ. But उसके बाद then I think I got so busy with my music and I got so busy with trying to, and suddenly I realized that I'm not playing well enough. So I think उस पर बहुत टाइम निकल गया. और एक बेसिकली बड़ी सिंपल मुराद भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि वो खुशकिस्मत है कि उनकी हो गई. But you know, marriage is something. It's destiny. I feel ऐसा नहीं कि I don't want to. I would love to settle down for sure. Because I do believe in family. I do believe in passing on the tradition, girl, boy, whatever that is. I don't know, but I'm just saying. But for me, simple logic है. जिसको चाहा शायद उन्होंने मुझे नहीं चाहा, और जिन्होंने मुझे चाहा मैंने उनको नहीं चाहा. तो बस ये तो अक्षय कुमार के मूवी का डायलॉग हो गया, टाइप हो गया. हाँ, but ये simple logic है. When things have to happen, it will happen, भाईजान. वक्त होता है हर चीज का, you know. तो I think हर चीज का एक समय होता है. And वाल्मीकि जी ने 80 साल की उम्र में रामायण लिखी, तो you know, you don't know what happens next. I remember when आपने ये बात कही, but tell Murad bhai I'll not let him down soon, hopefully. मुराद भाई, I think आपको जवाब मिल गया होगा जी. दुआ तो हमारा मुराद भाई ही कुछ और कमेंट कर रहे थे. सो बट इट्स मुराद भाई एक्चुअली जब कमेंट करते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि मुराद भाई की चिट्ठी आई है. सो इफ यू सी द कमेंट्स दे आर लाइक दिस लॉन्ग. सो अगर मैं मुराद भाई के सारे वो पढ़ूंगा तो मुराद भाई आई एम वेरी सॉरी, वो तो चिट्ठियां ही हो जाएंगी. बट आपने जो अभी भी बोला ना कि जो हमें पसंद थी ऐसा कुछ, तो वो एक अक्षय कुमार की मूवी का डायलॉग था जिसमें वो कहता है कि जो हमें पसंद, जो हमें चाहिए उनको हम नहीं चाहिए, और जिनको हम चाहिए वो किसको चाहिए. नहीं, मुझे बेसिकली जब कोई भी ऐसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि शादी में, क्या, अरे भाई नहीं हुई, कोई पसंद नहीं किया मेरे को, या मैंने ही पसंद नहीं किया तो नहीं हुआ, यू नो. पर ऐसा नहीं कि इट, आई मीन, सी वी ऑल नो दैट वी ऑल विल सेटल डाउन. ऐसा नहीं है कि इट्स समथिंग दैट यू नो आई डोंट बिलीव इन, बट इट्स जस्ट अबाउट टाइम. आई थिंक इट विल हैपन एंड इट शुड हैपन नेचुरली. व्हेन यू फोर्स इट, भाई देखो, वी आर नॉट मशीन्स. हाँ जी, वी आर नॉट हियर टू डिलीवर. We are people who have emotions. The only difference between humans and machine is that machine का हर चीज has to be at the point, and emotions में ऐसा कुछ नहीं होता है. So I think, you know, let's see. I mean, I think now. जी आप कह रहे थे जी. नहीं, after you please. जी वो आपके मुद्राज के बारे में जो आपने हस्त मुद्रा की थी, वहाँ क्या बात है मान जी. I love the हस्तकाज presentation. But I'm surprised. मैं आपको इतनी देर से बात होती है हमारी, बट आई नेवर न्यू कि आपको भरतनाट्यम का इतना डिटेल में आता है. थोड़ा ब्लड में नहीं, मुझे मैं 10 साल हो गए मुझे डांस शूट करते, मुझे एक भी वो नहीं आता, एक भी नहीं पता. हाँ, मुझे गलतियां निकालनी आती हैं दूसरों की. आपने तो आई थिंक यू हैव डन सो मच फॉर ऑल द परफॉर्मिंग डांसर्स of all ages. You preserve their moods
और and you've been surrounded by women all around you. मैं तो सोचता हूँ अगले जन्म में मैं ये पकड़ता हूँ, ये कैमरा पकड़ लेता हूँ. This is नहीं मैंने मुझे तो how cool is Bhabhi with it? You interacting with so many beautiful ladies. she knows मेरा काम बस photography तक ही. No, you've done amazing. Anyway, and you're doing I'm just blessed and I think you've just started. like, You just started. I think there's a long journey ahead. I mean, I would like to see. I would like you to. I would want you to make films actually on Indian classical musicians and dancers, but to preserve. आज वो हो ही नहीं रहा. Unfortunately, the government they're not preserving. The last nice film I saw was of Pandit Rajan Chacha and Sajan Chacha ji, which was shot very nicely. उनका था एक documentary मैंने. I told Chintu Bhaiya also about that. But I'm just saying. So you know, उसके बाद कोई documentaries आई नहीं गुलजार साहब. वो जो पहले बने थे कहाँ बने? जी अभी नहीं. So I think but मैंने I was just thinking yesterday about this when I was watching that documentary on that play, that Bandish Bandits. You know, that on the whole series. I'm so proud that finally that आप देखिए film industry has recognized or they think कि इतना मसाला है Indian classical music industry में और dance की industry में कि उसके ऊपर एक film बन सकती है. So this is a good, yes. So for our industry, it's a big thing. बहुत अच्छी बात है. It's become relevant now. जी, very true. उसमें क्या होता है ऐसा था. हाँ जी. साई कृष्णन जी कमेंट्स फ्रॉम यूएस. आप लोगों ने भी परफॉर्म किया था इनके लिए रिसेंटली. Aman bhai, that's amazing to hear. Bharatnatyam Hasta is one of the very humble artisans. Great to talk to you. And Ayan bhai, couple weeks back. Thanks Iniji for this program. Such a pleasure. Thank you so much. Thank you so much for joining. अच्छा, कोई मेरे सरोद की बात नहीं कर रहा, सब मेरी डांस की बात कर रहे हैं. I'm the wrong profession or what? भाईजान मैं पूछना चाहता था आपसे एक्चुअली सरोद के बारे में. इतने सालों से रियाज करके भाई मैं लोगों को बता दूं, there are a lot of people who have joined today and I was expecting कि आज तो काफी लोग सुनेंगे इनको. Sabiri Mishra says hello Aman bhai from all the way from UK. Please, namaskar. And she is also a fantastic dancer and you know she's amazing. I've known her father. He's an older brother to me and he's been very nice and kind to me and they come from a great family of musicians, dancers themselves. And मैं उनके साबिरी जी को मैं बताऊंगा. I've seen her those complicated tala she does on I think on social handles, and it's fantastic. बहुत अच्छा है. मुझे लगता है what I should do is I should stop taking the comments because मैं जिसकी बात करता हूँ you start, आप उनका बात करते हैं, मुझे आपसे बात करनी है. So what I was wondering because मैं आजकल since everybody has been sitting at home for the last 6 months and so. And I've seen a lot of videos. I've been following a lot of classical music concerts जो भी हो रहे हैं, जो भी some of the ragas that they've been playing. I've never, मतलब मेरे जैसे ने तो कभी सुना भी नहीं है उनके बारे में. And those are the young people. And I tried Google for some senior artists playing the same rags or YouTube. I didn't find any. I don't even remember the name of the ragas. Kind of non-प्रचलित ऐसे कुछ होंगे जो बिल्कुल भी प्रचलित नहीं हुए. What is your take on that? कि आजकल जो उस तरह के जो राग बज रहे हैं या I am a very small fish in this big ocean to comment. But अगर आप मुझे पूछें, let's say we are not on this chat room and हम आमने सामने बात कर रहे हैं, and this is only for your consumption. I'd not say that anyone should take this thought. This is coming from my father's way of thinking. वो हमेशा कहते हैं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक राग फ्रेंडली होता है. एक इंस्ट्रूमेंट, अब जो चीज सितार में एक राग में बजती है, सरंगी में बजता है, शहनाई में, शायद वो सरोद में ना बजे, जो सरोद में जैसा बजेगा दूसरे इंस्ट्रूमेंट में शायद ना बजे. यू डोंट नो. सो पहले तो वो एक रिसर्च होता है. इट इज कमेंडेबल व्हाट गाना बजाना आज हो रहा है. बहुत अच्छा गाना बजाना हो रहा है और बड़े अच्छे अच्छे राग. पहले तो आपको रिकॉर्डिंग्स मेघ मल्हार के मिलते थे या खाली मियाँ के मल्हार के पहले थे. बट अभी क्या हो गया, जब से यूट्यूब में सारे आने लग गए ना, रामदासी मल्हार, मियाँ बाई की मल्हार, सूर मल्हार. अब इसकी नॉलेज रखना एक चीज है जी, और एक चीज है बजाना उसको. अगर मैं कल एक इंटीमेट गैदरिंग के लिए बजाऊंगा तो शायद मैं उसमें गौड़ मल्हार बजा दूंगा, सूर मल्हार बजा दूंगा कि नजर फरमाइए, देखिए ये बंदिश पूरा एक वैसे. अब हर राग का एक लिमिटेशन है. जैसे राग यमन को आप आराम से 2 घंटे खींच सकते हो,
बट उस तब भी रेपिटेशन होंगे। बट अगर आप किदारा जैसे राग को 2 घंटा खींचेंगे तो यू आर जस्ट गोइंग टू रिपीट योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। You understand? So I mean, this is my thinking, this is my study. It's very nice to be knowledgeable, but it is either you're intelligent or not to use an opportunity on stage. अब मैं अगर मुझे आज 4000 की ऑडियंस मिल गई और मेरा श्री मान लीजिए मैंने थोड़ा बहुत तैयार किया हुआ है, अब शुड आई प्ले श्री जो बचपन से बजा रहा हूँ, या शुड आई जस्ट गो ऑन स्टेज एंड प्ले हंस कंकनी जो मैंने शायद 1 साल पहले सीखा है, बट लोग बोलेंगे मैं बड़ा माहिर हूं। सो इट इज माई थिंग, व्हाट इज गोइंग इनटू माय हेड इज माय थिंग। सो मैं क्या करूंगा कि मैं अभी उस चीज को बाद में करूंगा, जब मैंने उस पर रिसर्च कर दिया 10 साल 15। देखिए जब राग हम स्टेज पे बजाते हैं ना इन्हीं भाई, हाँ जी, आई डोंट प्ले अ राग टिल आई हैव नॉट वर्कड ऑन इट फॉर एटलीस्ट 7 to 8 years. Wow. That is because I consider myself a student and seriously a student, and I just still feel that I've not started playing even half of what I should be playing, being Amjad Ali Khan Saab's son. ये ईमान की बात है, मुझे इससे कुछ मतलब इसे बोलकर कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं ईमान से मानता हूँ कि I'm still not happy with my playing. I really have to arrive as my own. But my every stroke of my playing should tell the world कि मैं उस्ताद अमजद अली खान साहब का बेटा हूँ। मेरे अंदर वो रेबेलियसनेस नहीं है कि मैं अपना करूंगा, अपना कुछ क्रिएट करूंगा। आई एम नॉट इन अ रश। अगर किस्मत में है क्रिएट हो जाएगी खुद ब खुद, और अगर नहीं है आई एम वेरी हैप्पी प्लेइंग माय फादर्स म्यूजिक एंड पासिंग फॉरवर्ड द ट्रेडिशन टू द यंगर जनरेशन। You know, so it's like, so राग, ये राग सब बहुत अच्छा है, people who have knowledge और बजा रहे हैं जो बहुत अच्छा है, सब करिए। मैं कहता हूँ मैं अपने से छोटों के लिए कह सकता हूँ, तो मुझसे 10 साल छोटे हैं, कि प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन द ट्रेडिशनल राग्स फर्स्ट। सुबह के रागों में ललित जैसे हो गया, गुजरी तोड़ी हो गई, दोपहर को आपकी भीम पलासी हो गया, ये जो भी पुराने राग जो चल रहे हैं वो अप्रचलित राग सब ठीक है। अच्छा कुछ राग होते जो गाने के लिए बड़े अच्छे बने, बट सरोद में मैं सरोद की बात कर सकता हूँ बिकॉज़ आई डोंट नो सितार एंड सारंगी एंड शहनाई एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेरी जो नॉलेज, अब जो चीज संतूर में अच्छी बजेगी शायद वो सरोद में ना बजे, जो चीज फ्लूट में अच्छी बजेगी शायद सितार में अच्छी ना बजे। सो भाई इट्स योर माइंड, व्हाट यू वांट टू डू विद द अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू बाय गॉड। बिल्कुल, वेरी ट्रू। अब जहां मेरे पास चॉइस है ललित बजाने के लिए, जिसको मुझे पता है माहौल 1 मिनट पे जम जाएगा, अब मैं वहां पे गुनकली पकड़ लूं जाकर, वो अपनी कलाकारी दिखा रहा हूँ ना मैं, कि देखो मैं अप्रचलित राग बजा रहा हूँ। आई थिंक उसमें एक क्या होता है, उसमें हर कलाकार को एक होता है कि शायद आई गेट रिस्पेक्टेड। जी, आई फील आई माइट बी रॉन्ग बट आई एम अ ओल्ड स्कूल। आई फील कि पहले बेसिक्स जिन रागों ने पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खान साहब, उस्ताद रईस खान साहब, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, या उस्ताद अमजद अली खान साहब या उस्ताद अली अकबर खान साहब, जिन रागों ने इनको बनाया, ये लोग ज्यादा अगर आप फोकस करिए इन्होंने कौन से राग ज्यादा बजाए, बिकॉज दोज राग्स हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद द ऑडियंस। देखिए हर राग का भी एक डेस्टिनी होता है, एवरी राग हैज अ डेस्टिनी। इट्स लाइक यू हैव 7 कलर्स, बट व्हाई डज व्हाइट एंड ब्लैक अट्रैक्ट पीपल क्विकली, और रेड? जी, वो लाइट ब्लू येलो पे ध्यान बहुत बाद में जाता है, काले पर सफेद पे ध्यान जाता है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट कनेक्ट। वेरी ट्रू। अच्छा मैं ज्यादा नहीं ज्ञान देना चाह रहा हूं, नहीं, दिस इज व्हाट नहीं, दैट इज बिकॉज मैं आजकल जो देख रहा था मुझे यही कुछ फील हो रहा था कि क्योंकि सॉरी सुने नहीं थे तो थोड़े अपील नहीं कर रहे थे। नहीं, जैसे मेरे लाइफ में या मेरे छोटे भाई आयान भाई के लाइफ में जो राग श्री की कृपा हुई है, जो कृपा पूरी धनाश्री जी ने दिया है, जो राग यमन ने आशीर्वाद दिया है, पूरी कल्याण ने दिया है, रागीश्री ने दिया है जी, माड़वा ने दिया है, मालकोस ने दिया है, भागीश्री ने, ये सब हमारे म्यूजिशियंस के लिए तो सब भगवान देवता है ना, ये तो नाम, दीज ऑल गॉड्स एंड गॉडेसेस, तो इनकी कृपा। एंड बेसिकली एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ बिलावल एंड भैरवी। इन दोनों को आप साध लो, पूरा शिव पार्वती को पकड़ लो, पूरा दुनिया आपका है। यही तो है, और क्या है।
मुराद भाई का एक चिट्ठी थी। अमान भाई सरोद के जी परिवार के आप माशाल्लाह रिप्रेजेंटेटिव हैं और बेहद उम्दा और सुरीले हैं। बिसाइड योर ओन क्या इंस्ट्रूमेंट बात आपके है। साज को पसंद करते हैं। आई नो एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज देयर ओन खुशबू। आई होप मुराद भाई ये नहीं सोच रहे आप सारंगी बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, सारंगी भी मैं बोलूंगा बिकॉज आई डू लव सारंगी साउंड, आई लव इट बिकॉज इट इज वन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन it touches you a lot. It's actually the first instrument जो human voice के साथ मिलता है। जी। तो पुराने जमाने में शायद ये भैया बताएंगे आपको, बड़े बड़े जो गवैये थे वो सारंगी अवॉइड करते थे, क्योंकि जो सारंगी वादक थे वो ज्यादा तगड़ी तान चले जाते थे। Because, जी। हाँ, it's true। हाँ जी। तो जी। सारंगी इज ब्यूटीफुल। आई लव संतूर। संतूर की भी आवाज अच्छी है। खैर शनाई तो बजी नहीं जिंदगी में ज्यादा मेरी लाइफ में, तो वो भी पसंद आएगी जब बजेगी बहुत शनाई जल्दी, जब। आई एम श्योर। तो सितार इज ऑल्सो समथिंग आई लव। और गाने का तो मैं बहुत शौकीन हूँ, क्लासिकल जो गाना है। और बट आपने तबला, तबला सीखा है? आप तबला बजाते हैं? आपकी वीडियोस देखी है मैंने नहीं, स्टेज पे। मैं आई ऑलवेज हैड अ मेल क्रश ऑन ऑल माय तबला प्लेयर ब्रदर्स। अब जैसे कहीं 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 अगर साउंड चेक चल रहा है तो हमारे जो बड़े भैया हैं पंडित विजय घाटी जी, विजय भाई का तबला रखा है, उस पर मैं इजाजत लेकर, या मिथिलेश भाई का हो या राशिद भाई का हो, इन लोग का मैं तबला लेकर, या साउंड सत्यजीत भैया हो, या यू नो ये लोग जी। हो, इनका मैं मस्त पर देख देख कर इनको, बिकॉज एनीवे आई हैव बीन सो फॉर्चुनेट अगेन कि पंडित किशन महाराज जी, पंडित पंडित शांता प्रसाद जी, जी। I've got the opportunity to, I have accompanied them। मुझे ऐसा मौका मिला जिंदगी कि मैं उनने मुझे ताल दिया है। When I was 16 years old, when there was a festival in Bombay, जहाँ पर हिंदुस्तान के सारे बड़े लोगों ने मना कर दिया मेरे साथ, because 16 साल का था, and I was a very amateur, still I'm not that good, but that time was even worse। तो उस्ताद दैट्स योर जाकिर हुसैन ह्यूमिलिटी। साहब ने, जी। नहीं, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने, ही सेड आई विल प्ले विद अमन। और वो बात मुझे याद रही। एंड दैट टाइम आई मीन ही वाज अ मैन हु वाज प्लेइंग कॉन्सर्ट्स एवरी डे। और उसके बाद ऑल्सो अयान भाई मुझे बहुत उन्होंने प्यार और इज्जत और आशीर्वाद दिया, वेरी ग्रेटफुल। और उसके बाद पंडित कुमार घोष जी हो, पंडित अनिंदो चैटर्जी हो, पंडित स्वपन चौधरी जी हो, जी। शुभंकर भाई, मेरे विजय भाई इज लाइक अ फ्रेंड टू मी, सो मैं इसलिए कहता हूँ मेरे विजय भाई। जी। तो विजय भाई हो, या आई प्लेड विद एवरीबॉडी। अकरम खान साहब हो, अकरम भाई हो, जी। राशिद मुस्तफा साहब हो, मिथिलेश भाई, एवरीबॉडी। आई प्लेड विद सो मेनी पीपल, विक्रम घोष जी। सो आई प्लेड विद अ लॉट ऑफ म्यूजिशियन। आई एम सॉरी अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूँ, इट्स नॉट इंटेंशनल। But जी। in the नहीं। younger lot, I've played with Satyajit Bhai, Ojas Bhaiya, Ishan Bhai, Sanju Bhaiya, so the senior and such a lovely human being। So yeah, ये I've been blessed संजू that they भाई have से all have, yeah, मेरे को कान उनका गहरे बहुत लोग। बहुत नमस्कार and आदाब to Sanju Bhaiya। And please tell Sanju Bhaiya, still remember the kurta, once first time I met him and I said, can जी। somebody be so good looking? नहीं, मैं घबरा गया था इनको देखकर कि यार ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत आदमी है। he was wearing this green kurta and this white skin। हाँ जी। He's an amazing musician and a great human being। I love him। देयर वाज अ संजू भाई ने ये थोड़ा सा पुराने वो हैं। these were the messages posted a little earlier, so I'm just taking जी them now because we were मुराद भाई says अमान भाई बहुत उम्दा नॉलेज दे रहे हैं यंग कलाकारों के लिए। भी thousands of traditional ragas, उधर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। जी सॉरी। मतलब ये मेरी सोच है, नहीं भाई, आई माइट बी कंप्लीटली जी। बी रॉन्ग एंड आई एम नॉट सेइंग माय, एंड आई डू बिलीव आई एम रॉन्ग अगर किसी को लग रहा है मैं गलत बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरी सोच है, ये मेरे पिता की जी। तालीम है, जो मैंने अपने पिता को देखा है, सुना है और सुनता हूँ, सुनता रहूंगा गॉड विलिंग इंशाल्लाह हमेशा। तो उनसे ये सीखा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सिंपल लॉजिक। बिल्कुल। जी। ये जब उस्ताद जी मुझे भी बताते हैं तो मेरे को बड़ी अपने ऊपर शर्म आती है कि मैंने हर जगह टांग फंसाने की कोशिश करी और कुछ भी नहीं कर पाया। नहीं नहीं, देखिए लेकिन नहीं भाई, ट्राई तो इट्स चल इट्स रही है। अमेजिंग कि आप कमिंग फ्रॉम अ नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, व्हेन आई से दैट विद ऑल रिस्पेक्ट, आई से दैट जी। टू गेट इनटू तबला बजाना हो या
सरोद की जो इच्छा सीखने की है, ये इट्स अमेजिंग. प्लस आप And I photography में thank, हैं. I will always be, indebted to एंड you वन मोर because थिंग, नहीं, एंड वन मोर जी थिंग जो आप बहुत कमाल का कर रहे हैं, शायद आपको इसकी रियलाइजेशन नहीं है इस बात की, कि यू आर कनेक्टिंग all the musicians and dancers together under one platform, which is a very, आज तक पहले किसी ने नहीं किया है. आप ये जो इसका, आप जो इसको, आप trying, जो thank you so आप much, भाई. आप ये जो रख रहे हैं ना, दिस होल थिंग ऑफ टॉकिंग, क्वेश्चन आंसर्स, ये बहुत बड़ी चीज है. नहीं तो आधी जिंदगी तो कलाकार एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, चले जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ वो अच्छे थे, जी. ये वो अच्छी थी. हाँ. एक कमेंट आया था, सर एनी प्लान्स ऑन क्रिएटिंग समथिंग सिमिलर टू आज रंग है अगेन, समथिंग विद योर वोकल्स टू? दिस इज किनका मैसेज है ये? प्रशस्ति गीता सेठ. हाय, हाउ आर यू? शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, जी. टोरंटो से हैं. तो व्हाट्स द क्वेश्चन? सॉरी, मैं भूल गया, आई डिडंट. जी, इट वाज एनी प्लान्स ऑन क्रिएटिंग समथिंग सिमिलर टू आज रंग है अगेन, समथिंग विद योर वोकल्स टू? सीरियसली कोविड पहले खत्म हो जाए, पूरी तमन्ना खत्म हो गई है, इच्छा खत्म हो गई कुछ क्रिएट करने का. बस भगवान करे क्रिएटर हमको जिंदा रखे और ये वक्त निकल जाए, उसके बाद देन विल क्रिएट. आई एम श्योर ये भी जल्दी निकलेगा और एक अच्छा टाइम आएगा व्हेन विल जी डू समथिंग न्यू, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इसके बारे में. मेरे को जो मैंने अर्ली इयर्स का सीखने का, मैंने एक इंटरव्यू में आपके सुना था, जो जब आप लोग बहुत छोटे थे और आपने बजाया था और उस्ताद जी को बुखार हो गया था. अभी भी बहुत छोटा हूँ नहीं भाई, प्लीज. जी नहीं, दिस इज योर ह्यूमिलिटी, ये जो आप बोल रहे हैं, आई एम श्योर. लेकिन जब हम हमारे नजरिए आई एम सेइंग एज वाइज छोटा हूँ, एज वाइज अभी भी छोटा हूँ. नहीं, मैं एज की बात ही नहीं कर रहा. नहीं, आई एम टॉकिंग, अच्छा, बिकॉज़ वो कॉन्सर्ट जो आप बता रहे नहीं भाई, दैट वाज अ कॉन्सर्ट इन लोगन हॉल इन लंदन. जब पता ही नहीं था कि क्या होता है गाना बजाना, मतलब वो रटे हुए लाइक पैरेट्स तान जो सीखा जाता है, बजा दिया एक ऑडियंस के बीच. तो आई थिंक ऑडियंस में हरि अंकल थे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी बैठे थे, और दो तीन और बड़े लोग थे, मैं नाम मुझे सॉरी याद नहीं आ रहा. और हम लोग बजाए तो सम कहीं तबले पे उस्ताद शफात अहमद खान साहब थे, मरूम खान साहब हमारे. तो शफात भाई से बहुत प्यार और बहुत दोस्ती थी उनसे भी मेरी. तो खैर वो तबले पे वो थे, और गत कहीं चल रहा है, सम कहीं आ रहा है, खाली कहीं और जा रहा है, और मतलब बिल्कुल ही बेखबर होकर बजाना जिसको कहते हैं. मतलब ज्यादा शौक है कि लंदन गए हैं बचपन में तो ट्रफालगर स्क्वायर जाएंगे, वैक्स म्यूजियम जाएंगे, वो सब जो एक बचपन की जो होती हैं. एंड देन कॉन्सर्ट करके वापस आए, और रात को माँ ने कुछ वहाँ पे कोई छोटा सा अपार्टमेंट, रेंटेड अपार्टमेंट लिया था, तो वहाँ पे माँ खाना बनाकर हमको दे रही थी. और आई थिंक अबाउट 13 और 12, और अयान भाई शायद होंगे 10 के शायद. एंड अब्बा वाज नॉट देयर बिकॉज ही हैड हाई फीवर, बिकॉज उनको बड़ी जिल्लत महसूस हुई. और वो एक दिन है और आज का एक दिन है. सी, आई डोंट वर्क हार्ड टू सक्सीड एनी भाई, I work very hard with the fear of failing. जी. तो भगवान ना करे अंधेरा ना आए घर पे, बिजली ना चले जाए. 10 लाइट और लगा दो, मुझे उसका शौक नहीं है, बट लेकिन बिजली ना चले जाए. तो my fear, what keeps me going is the passion obviously I have for my music, or the love or the dream that I see in my Abba's eyes and Ma's eyes. But the fear of failing is what pushes me to work harder. That's very inspiring. And jo like because I've spoken to Ustad ji, I've sat with him, he spoken to Ustad ji ne jo history apni bhi batayi hai, jo maine suni hai. From that I have realized that jaise aapne bataya, he's very sensitive, and that because जब मैं फोटोज खींचता हूँ, जब मैं उस्ताद जी को स्टेज पे देखता हूँ, there was a point when I used to see pictures. I hadn't photographed a lot of artists, but when I used to see pictures with eyes closed and looking up and feeling that moment, I never thought कि मैं सोचता रहता था कि उस टाइम वो आर्टिस्ट क्या फील कर रहा है. And I remember asking once उस्ताद जी कि जब आप when you are in that, और वो सिर्फ उनके अपने लिए नहीं है, because when he's playing that, or when you're playing that, or an artist is playing, it's like जब मैं उस्ताद जी को देखता हूँ उस मोड में, तो वो मेरे अंदर भी वही फील आती है
कि बस आंखें बंद करके कैमरा रख के बैठ जाओ और सुनो कि वो क्या हो रहा है. एंड देन यू नो I also remember I just got a message, one comment from Vrinda Chadha. So this is such she's a fellow Vrinda. I Thank think you, Niji and Vrinda ji is a fellow Modernite from the same school. I think हाँ जी, she's batches from junior or She's a more. Yeah, and she is also a fantastic dancer, and I've seen her work, and when she's doing it, she looks very passionate doing it, which is बहुत कभी like you can make her that she's enjoying her work, which is very important, and we are very proud of her. She's doing a great job. Gauri Divakar ji had joined us. I forgot to take a message earlier, but she says, "Fear of failing," again an inspiring line. Gauri Divakar ji is a very thank you. She's a fabulous Kathak dancer. नहीं बिल्कुल. Personally, I don't know her, but I just want to thank her for saying that. मैंने एक और I remember I had shot one of your videos with Ustad ji on stage, जिसमें थोड़ा सरोद में सवाल जवाब या और it's like कुछ सवाल जवाब ही शायद उसको बोलते हैं. मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ and then I'll like to ask you. Okay. I'll just show you a little clip of that. I hope it's a good clip. Oh, you've taken a good clip. Every clip I've shot of yours and Ustad ji is a very good clip. अब्बा का अच्छा है, मेरा नहीं होता है. Let's ask the people who are watching this. And I miss these moments so much. कि मेरा अभी the problem is, can you hear me now? जी, I can hear you. Yeah. The problem is when you sit with Ustad Amjad Ali Khan Sahab, दूसरा आदमी जो दिखता है स्टेज में मंकी ही दिखता है वो. He's such a good looking guy. Abba is so amazing. And इसमें तो मैं काफी हट्टा कट्टा और अच्छे खाते पीते घर का लग रहा हूँ. काफी फूला हूँ उसमें. हाँ भाई. नहीं भाईजान, मैंने I hope you remember I told you भाईजान व्हाइट का कमाल है वो, व्हाइट कलर का, क्योंकि मैं मेरा पैरों में नहीं खोलता काफी दिन तक. But Ustad ji is divine on stage. वो तो he's amazing. He's a different person on stage. He's a very different person off stage. So there is a switch. और ये सारे 90% Indian classical musicians, 90-95% के साथ ये switch मैंने देखा है कि वो घर में आप उनसे कैसे बात कर रहे हैं और वो ग्रीन रूम से वो जो डिविनिटी एंटर करती है हर कलाकार के अंदर और स्टेज तक जो जाती है वो कलाकार एक ट्रांसफॉर्म्स इनटू, बिकॉज़ सी बेसिकली व्हाट आर वी आर जस्ट टूल्स दैट आर प्लेड. द म्यूजिक इज प्लेड थ्रू यू. जी, डिपेंड्स हाउ रेडी यू आर टू प्ले दैट म्यूजिक थ्रू यू. That is what we call रियाज. ये सब जी. Nasreen ji ने comment किया, I love this conversation. Lots of love from Amsterdam. I'm a big fan of Ustad Amjad Ali Khan and Sons. Thank you so much, Nasreen ji. That's so sweet of you. Thank you. Vajan, I wanted to ask you about that video जो मैंने अभी, because when I from a layman's perspective या जो मैं देख रहा हूँ, it's a very या जो जितना मुझे समझ आता है, it's a very difficult thing. But I remember उस्ताद जी ने मुझे बताया था ऐसा भी रियाज हुआ है, because उस्ताद जी मुझे बताते हैं कि जब बब्बी को मैं अपने बेटे को घर पे सिखाऊं तो किस तरह उसे सिखाऊं, सुर की समझ हो, अगर उसे मैं कोई एकदम बीच में कोई तान दी जाए तो उसे नोट्स पता हो कि कौन से सुर हैं. और इसमें जो आप जैसे आपने जो उस्ताद जी बजा रहे हैं वही आप बजा रहे हैं, एंड दिस इज नॉट रिहर्स्ड, ये तो ऑन स्टेज है जो भी है. So how was the training of this, or how was it must have been real hard work. And इसको कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि जी ये गिमिक्स हैं या ऐसा कुछ है. What is your take on that? See, इस दुनिया में बड़े ओपिनियंस हैं. सबसे अच्छी बात है कि सबसे बड़ी चीज जो फ्री है वो ओपिनियंस ही है.
वो उसमें कोई किसी का कुछ जाता नहीं, कुछ किसी का ओपिनियन। मैं भी यहाँ बैठा वही दे रहा हूँ शायद। नहीं, मैं भी देता हूँ। वो क्रिकेट जब मैच चलता है, ही शुड हैव प्लेड दिस शॉट लाइक दिस, घर बैठे बैठे, हाँ वो ठीक है, हाँ दैट इज जी। फाइन। बट आई टेल यू समथिंग इनी भाई, देखिए, एक होता है म्यूजिशियन, एक होता है परफॉर्मर। इन दोनों का जी एक साथ मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप हाँ, अपनी म्यूजिक को परफॉर्म करने जाते हैं 10 लोगों के आगे, तो जी आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको वो चीज कनेक्ट करे। जी उतना ही सुर होना चाहिए, उतना ही प्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक चीज अगर, इट्स लाइक दो, स्कूटर के दो पहिए चल रहे हैं, अगर एक भी फ्लैट हो गया तो गिरोगे आप नीचे। तो ऐसे जी बहुत बड़े म्यूजिशियंस हैं जो दूसरों को कहते हैं, अरे यार वो तो ही प्लेस फॉर द गैलरी, बट हम्म he has a full house, she has a full house, they are paid money, they get what they want। इस पे तो ईश्वर का ही आशीर्वाद है ना, और तो कोई कुछ हो नहीं रहा है वहां पर। अच्छा, बिल्कुल फिर कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं बड़ा बोरिंग है, खाली म्यूजिक समझ नहीं आता। अब देखिए क्या है, म्यूजिशियन होना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विद्वान होना, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहला ड्यूटी कि आपका साज सुर में बोले, पहला चीज। फिर आप जी राग बजाइए, और जब राग बजाइए गाइए तो सही गाइए, और उसके बाद जी आप उसको ऑडियंस तक कनेक्ट करिए। देखिए, जो जी कनेक्ट करता है ना ऑडियंस के साथ, हाँ हाँ वो जी वो उसकी गाड़ी चल पड़ती है। यहाँ पे दिस नथिंग नोन एज, यू कैंट पुश समबडी ऑन एनीबडी। इफ यू सी, जी आज के लिए नया टॉपिक चल रहा है, स्टार किड्स और ये किड्स और वो किड्स, आउटसाइडर इनसाइडर। हाँ अगर जी आप देखें, हर इंडस्ट्री में बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं जो बहुत कामयाब रहे हैं, और इनसाइडर जो बड़े नाकामयाब रह गए। जी ये आप कोई शैम्पू या सोप तो हो नहीं जो प्रमोट किया और आपको ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ जी यू नो बिल्कुल पहली जी दफा प्रमोट किया, सेकंड टाइम प्रमोट किया, बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टाइम आप उनसे बोल रहे कि जी मैं 2 रुपया लूंगा, तो 2 रुपया देकर बुला रहे हैं आपको। आप समझ रहे हैं बिल्कुल कि आपकी जी डिमांड जी एक्सेप्ट हो रही है, तो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। जहां तक जी आपने बात करी वो मिमिक जो लड़ंत है, और ये, आई वांट टू अश्योर यू, फॉर मेनी इयर्स मैं लड़ंत नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा टाइम साइकिल खराब था। एक टाइम साइकिल होता है हर ताल का, चाहे धमार हो, 3 ताल जी हो, या कोई भी। तो दैट टुक मी टाइम, दैट वाज माय स्ट्रगल। बोल बोल कटने जी लग गए मुझसे, ठीक है, सुर में ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है कि थोड़ा बहुत सुर में सरोद बच गया, लेकिन जी मेरा टाइम साइकिल खराब था, तो उस पर हैड टू वर्क। लड़न करना बहुत मुश्किल है, लड़न करके टाइम साइकिल रखना। इट इज नॉट गिमिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ म्यूजिक। सी, देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ म्यूजिक, वी आर जी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। हम वो हाँ पैटर्न जो गवैया, जो एक गाने वाला जो फॉलो करता है, हम वो फॉलो नहीं कर सकते। हमें अपना भी हाँ करना है। तो सरोद में वेरी आप बोल बाट रखते हैं, एक हारा तान करते हैं, जो विच माय फादर हैज प्लेड सच अ इंपॉर्टेंट रोल। आई फील वेरी बैड, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। जो एक हारा तान सरोद में शुरू हुआ, दैट माय फादर हैज a major role, and I feel very hurt ki, see, one more thing I feel bad is the younger generation should always respect elders, जी वेरी ट्रू and आज पता है आजकल मैं क्या देखता हूँ नहीं भाई, चलो, I've not reached that point, or I'm not across the hill on the other side, but ऐसी पहले जमाने में जब पंडित रविशंकर जी, या मेरे अब्बा उस्ताद अमजली खान साहब, या बिस्मिल्लाह खान साहब, या बड़े सुल्तान खान साहब, या उस्ताद जाकिर हुसैन जी, ये लोग जब ग्रीन रूम में बैठते थे ना, हम लोग धक्का देकर अंदर जाते थे कि बस पैर छूने इनके। एक जी पागलपन था कि देखना है, हाँ जी इनका पैर छूना है, ये हमें पहचाने, हमें मतलब कि हम, ही जी सीज मी आल्सो देयर, एक पागलपन। हाँ वो अब खत्म हो गया। अभी ईगोज इतने आ गए नहीं भाई कि अरे यार व्हाट्स द पॉइंट गोइंग देयर, क्यों छूना, बाद में करते ना, छोड़ना, व्हाई शुड वी डू इट, वो दूसरे घर आने का है। ये सब म्यूजिक में नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, ये बात मुझे एक्चुअली मेरे बड़े भाई विजय भाई ने एक बड़ी अच्छी बात मुझे एक दिन बोली। विजय घाटी भाई ने कुछ बैठ कर जी बात कर रहे थे, कहते हैं फैन बनो, इंस्ट्रूमेंट का फैन बनो, इंसान का नहीं। तो अगर आप सरोद में आज बजा रहा हूँ, तो मेरे जहन में उस्ताद अमजद अली खान साहब आने चाहिए, उस्ताद अलीबर जी खान साहब आने चाहिए, उस्ताद बहादुर खान साहब आने चाहिए, आशीष खान साहब, ये बात जी जो सरोद का जिन्होंने प्रचार किया, ये आने चाहिए। अगर मैं जी सितार में हाथ रख रहा हूँ, तो मेरे जहन में पंडित रविशंकर जी, उस्ताद जी विलायत खान साहब, उस्ताद रईस खान साहब, पंडित निखिल बैनर्जी, ये आने चाहिए। तबले पे हाथ रखा है तो जी पंडित शांतर प्रसाद जी, उस्ताद जी अल्लाह खान साहब, पंडित किशन महाराज जी, या उस्ताद जाकिर हुसैन साहब
अगर आप हाथ रख रहे हो या उस इंस्ट्रूमेंट को बजाकर आप सब बड़े दिग्गजों को सलाम नहीं कर रहे हो, सो यू आर लाइंग, यू आर लाइंग टू द इंस्ट्रूमेंट. It's not possible that your guru, I mean, for me, my guru is the best. But हाँ जी. technically, it's not possible that my guru or somebody else's guru is the only guru. There have been many gurus in this world. So we should respect every guru and see their contribution. ये weaknesses हैं, human weaknesses हैं कि मुझे वो पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे खाली यही पसंद है. ये नहीं करना चाहिए. Music is not about that. Music is a vast ocean. Everybody should be appreciated and loved. जी, that's very beautifully put. मोहित भाई ने एक कमेंट किया था, अमान भैया आपका पर्सनल फेवरेट ताल कौन सा है जो आप ज्यादातर बजाना पसंद करते हैं? वैसे हर ताल में ही आप बहुत बखूबी बजाते हैं, बट एनी पर्सनल फेवरेट जहाँ पे सवा या साढ़े पहले तो मोहित भाई को नमस्कार. और ये सवाल उन्होंने क्यों पूछा मैं ये भी समझ गया. ये क्या हुआ था, हम लोग जयपुर में बजाए थे एक दफा, जयपुर के पास में बजाए थे मोहित भाई और आई थिंक शुभ महाराज भैया तबले पे थे जी. तो सब कुछ हो गया ग्रीन रूम में. मैंने बोला पकड़ा थोड़ी देर 9:30 मात्रा भी देख लेंगे. तो कहता है भैया पहली दफा हम लोग बजा रही है, जरूरत है क्या इसकी? बट ही प्लेड ब्यूटिफुली. बट ऐसी बात नहीं है. माय फेवरेट, जिस ताल ने मुझे बहुत प्यार किया और आशीर्वाद दिया, इफ आई हैव टू चूज वन ताल, इज झप ताल. उसको हम जाप का ताल, जाप करने वाला ताल, झप ताल. तो मतलब झप ताल में बहुत सारी, बिकॉज माय फादर आल्सो मेड अ लॉट ऑफ कॉम्पोजिशंस इन झप ताल. सो एंड नाउ लेटली आई स्टार्टेड एंजॉयिंग अ लॉट ऑफ विलंबित तीन ताल. आई थिंक उम्र के साथ आदमी की प्रेफरेंसेस बदलती हैं लाइफ में. सो नाउ ज्यादा नहीं है, बट हाँ विलंबित तीन ताल इज गुड, पर उसे उम्र से नहीं आप जोड़े. भाई विलंबित तीन ताल इज एक्चुअली माय ऑब्जर्वेशन, इट्स एक्चुअली द मोस्ट ब्यूटिफुल ताल. और एक ऐसा कश्ती है ये विलंबित तीन ताल कि कोई भी बजा दे उसको वावा मिलेगी उस पे. आप खाली मुखड़ा पकड़िए गत का और लोग वावा करेंगे. आपको सम पे भी आने की जरूरत नहीं है. मतलब खुला मैदान है जो, मतलब यू नो इट्स ब्यूटिफुल. बिकॉज दूसरे तालों में थोड़ा सा आदमी और वो छंद वंद में फंसता है, तो इट्स नाइस. हाँ जी. एंड आई थिंक हर यंग म्यूजिशियन को हर ताल बजाना चाहिए, चाहे वो आड़ा चौताल हो, धामार हो, रूपक, तीन ताल, यू नो जो भी जितने ताल हैं, 11 मात्रा, 4 ताल की सवारी, सो मत ताल, ये सब आनी चाहिए. एवरीवन शुड प्ले एवरीथिंग. एक कमेंट आया था, ऑलवेज एड्रेस, आई फील ऑलवेज एड्रेस योर वीकनेस. Address your weakness. हाँ जी, that's very true. Anagarika ji is asking, may I request you to share your experience on your recent album Strings of Peace with Sharon Isbin, please? Ji, please. Firstly, good evening and thank you for the question. Anagarika ji, yeah. So the thing is that we were very lucky. Sharon Isbin is one of the world's best acoustic guitar player. And obviously, again, because of my father's stature and caliber, Ayan Bhai and I got the opportunity to share the stage and accompany them, you know. I never say that I play with my father. I always say I accompany my father because, you know, wo jo hota hai. So we got very lucky. We have recorded about, I think, 7 to 8 pieces. The album is out now and is being received very well by God's grace. And we are hoping it'll get more glory in the time to come, hopefully. And obviously, मैं क्या बोलूँगा, जिस रिकॉर्डिंग में आपके पिता हैं, उनके साथ आप बजा रहे हैं, अकम्पनी कर रहे हैं. और शारन इस्बिन जो दुनिया की क्या वो, she's got, I think, all the awards of the world, I think, and you know, to share with them. And one thing you learn from the foreign musician is humility personified. थोड़ा सा भी उनको घमंड नहीं है अपने ऊपर. They are so casual, you know, take easy. हाँ जी. अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अब ऑडिटोरियम में घुसे तो फ्रंट रो को कोई ऑफर नहीं करा सीट, तो हमको लगता है अरे मेरा नाम कम तो नहीं हो गया, यू नो. हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम है अपने यहाँ पर. मतलब मैंने कभी देखा नहीं कि कोई आराम से जाकर चौथे रो में चुपचाप बैठ रहा है. वो आए तो सब देखें और कोई उठकर सीट दे दे, यू नो. जी, ये मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है जब आप मेरे प्रोग्राम में आए थे और आप पीछे बैठ गए थे और मैं आपको जबरदस्ती लेके अंदर लाया था. अगर मैं आपके घर का हूँ, अगर मैं आपको अपना भाई मानता हूँ,
So I would want you to give that seat to important other people who you are indebted to, जिनको बैठाना है. ऐसा कुछ नहीं है. My father always says, जहां बैठो उस सीट को फ्रंट रो बनाओ. You know, my father's teaching. He says, sit anywhere, make that the front row. उसकी कोशिश करो लाइफ में. Pete Puvana ji says, hi Aman, missed you guys in Yeah, Vancouver, hello. Canada. Once the Yeah, pandemic hi, is how over, are you? we can have you here. Yeah. And मुराद भाई का फिर से एक चिट्ठी आई है. अभी बोलिए अमान ना. भाई 16 के हुए हैं, इसलिए 3 जी. ताल कहाँ है इन्हीं भाई. वैसे तो सभी ताल अपनी जगह लाजवाब हैं, लेकिन 3 ताल बादशाह ताल माना जाता है. ये बुजुर्ग बिल्कुल. It's a ocean, and you know, it's जो 3 ताल जिसने संभाल लिया, उसने I think सारे ताल संभाल लिए मेरे हिसाब से. And then we've reached 1 hour. We have जी. तो आप अगर if you're No, willing to take we some can do questions, we can do 3-4 more questions, and then I'll head out for a dinner invitation to my brother's house. जी. हाँ जी जरूर. I'll just see, क्योंकि अब क्वेश्चंस मैं पीछे बीच में बहुत छोड़ गया, हमारी बातें हो रही थी जो, तो उसमें गाना केवल आप ही कर सकते हैं. अविनाश जोशी जी ने कहा था सरोद पे सूफी तराने बजा के गाना केवल आप ही कर सकते हैं. आने वाली नस्ल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत को शायद ज्यादा करीब से समझ पाए. नहीं, ये तो इनका प्यार आशीर्वाद है. It's all my father's hard work. I think it's his vision that मैंने और अयान भाई ने उसको कोशिश करा. Plus अयान भाई also himself. I am more of a worker in terms of मेरी imagination ज्यादा नहीं है, but he comes out with these beautiful ideas also. My younger brother, तो वो भी माशाल्लाह अच्छे आइडियाज देते हैं. और and then we start and उसको ऊपर वाला मुकम्मल करता है भाई, वो पूरा करता है उसको सोच को. And then by God's grace लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं. वो बहुत बड़ी बात है. अलकनंदा जी ने कहा था अमान जी यू आर अ वेरी ऑनेस्ट आर्टिस्ट. ये तो when I was saying you know, जी आप कह रहे हैं. नहीं, I want to thank her for, I want to in fact thank everyone जो सब लोग इतने प्यार से मुझे अच्छा अगर कोई डांट रहा है वो भी बता देना नहीं भाई जरा. नहीं ऐसा डोंट बी टू नाइस. प्रोग्राम पे कोई डांटेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा. नहीं, that is also important ना, to see the other side also. जी, प्राची दीक्षित जी is joining from US. जी वो कह रही हैं ऑडियंस कनेक्शन इज अ नेचुरल थिंग और कैन बी डेवलप्ड. I think 40 to 50% to be honest natural होता है, and 50% can be worked upon. Basically I feel it's a body language, and it's also letting go of yourself. अगर हम लोग ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं ना इन्हीं भाई की, अरे मुझे किस्सा याद है आज भी. मैं बहुत छोटा था वो जब मैं बात कर रहा था आपको. I was I think only 21 and उस्ताद जाकिर हुसैन साहब फिकी हॉल में I had the honor of sharing the stage with him. तो सब कुछ हुआ और he was surrounded by thousands of people, and then he came towards the wings. जब स्टेज पे जाना था तो मेरा नाम, मैं जाने वाला था, तो मुझे उन्होंने एक चीज बोला, कहते let's go have some fun. अच्छा मैंने दिल में सोचा अच्छा why fun, because जनरली आप स्टेज पे जाते हो तो बहुत मेहनत से जाते हो और बहुत जैसे एग्जाम दे रहे हो वो. लेकिन वो बात उनकी मैं आज समझा. आफ्टर so many years I learned कि it is all about going on stage, being relaxed, nothing to prove to anybody, and just have fun. आपको जितना मेहनत हो, जितना एग्जाम देना घर में दो, लेकिन जब स्टेज, a concert is a reflection of your journey of your रियाज till the stage. वो खाली रिफ्लेक्शन है स्टेज पे. जो आपने मेहनत करी है ना उसका आउटकम है स्टेज. स्टेज में नहीं बन रहा सब कुछ, बन तो पहले गई है, वो प्रेजेंटेशन वहां पे होती है. So I think just be relaxed and बस गुरु की तालीम पे फेथ रखिए. I always say walk straight like this. वो right left देखोगे तो you'll bang your car somewhere into someone else's car. तो ज्यादा नहीं देखना दुनिया क्या कर रही है, आप अपना रास्ता चलो. वो कछुए की walk, the walk of the turtle, and you'll reach your journey. My father in fact said a very nice thing, और my mother and father both, ये मैं बताना चाहता हूँ बात. तो एक दिन ऐसी मैं, म्यूजिशियन है हम लोग, नेचर से इनसिक्योर लोग हैं. सो पूछा कहीं देख लिया 2-3 अच्छा सितार सरो तबला किसी का, तो मैंने पूछा अरे बड़ा तगड़ा चल रहा है सब हिसाब किताब. सो मैंने बोला अब कंपटीशन क्या लग रहा है अभी आपको, किस के साथ. आई एम सॉरी इट्स अ नेगेटिव वर्ड, बट बिकॉज आई एम आल्सो अ स्पोर्ट्समैन,
बचपन से 100 मीटर शॉर्टपुट सब कहते हैं, कंपटीशन वर्ड है दिमाग में थोड़ा. तो ही से बेटा, योर बिगेस्ट कंपेटिटर इज नॉट समबडी हु इज बेटर देन यू. योर बिगेस्ट कंपेटिटर इज द पर्सन हु इज मोर हम्बल देन यू, जो ज्यादा स्थिर है आपसे, दिमाग की हालत उसकी अच्छी है. जिसकी दिमाग की हालत अच्छी है वो आगे जाकर आपको आपकी खिदमत करेगा. लेकिन आप जितना अच्छा गाना बजाना कर लो, डांस कर लो, अगर आप अपने आप को मान चुके हो कि मैं कमाल हूँ और मैं अमेजिंग हूँ और वाह वाह वाह, आई थिंक इट्स लाइक अ होल इन द टाइटैनिक शिप, यू आर गोइंग टू सिंक. I mean these things जो उस्ताद जी के यहाँ से मुझे, I wanted to share my experience. जब मैं पहली बार, आपको याद होगा जब मैं पहली बार आया था, तो हम लोग म्यूजिक रूम में नीचे बैठे थे और उस्ताद जी थोड़ी देर के बाद रूम में आए थे. एंड व्हेन ही वेंट एंड ही सैट देयर, जहाँ पे उस्ताद जी बैठते हैं, सबसे बात करके उस्ताद जी ने मेरी तरफ जब देख के पूछा था आप क्या करते हैं, तो यू नो आई कुडंट आंसर. बिफोर आई कुड आंसर आई हैड गूज बम्प्स. आई वाज लाइक, I mean, I was like quiet कि मैं क्या बोलूँ मैं क्या करता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता. And thanks to you, Aman bhai, कि but that is what it is. नहीं. Anyway, देखो, मेरा काम है कि I would want my father to be. What does a son want? Or what does a father want? That आप अच्छे लोगों के चारों तरफ घेरें. That's it. It's simple. So I saw the amount of love and respect and that you had for my father. So I just wanted my father to meet a good human being. That's all. Thank you so much for considering. Aman bhai, मुराद भाई के ब्रदर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था which we missed. जी, उन्होंने नहीं, अमान भाई ने जो अमान भाई छोटे, हाँ सॉरी, अमान भाई, करेक्ट. अमान भाई, what is your opinion regarding online concerts for free? Is it any how in favor of musicians in future? Lots of regards. पता है भाई क्या है, हर इंसान, जो भी इंसान, कोई भी, ये भैया अमान भाई के लिए, जो भी इंसान इन म्यूजिशियन एंड डांस, सबका अपना अपना एक कैलिबर बना हुआ है. करेक्ट जी. सबका अपना कैलिबर है और सब उस कैलिबर के हिसाब से अपने खर्चा पानी निकालते हैं. तो मेरा कहना बड़ा गलत होगा कि ये सही है गलत है, बट ये मेरी सोच ये है कि ऑनलाइन क्लासेस आर ब्यूटीफुल. प्लीज करिए ऑनलाइन क्लासेस. जो आप चार्जिंग योर मनी, चाहे 2 रुपए लीजिए या 2000 रुपए लीजिए, जो भी लीजिए, आप करिए ऑनलाइन क्लासेस. लेकिन जो फ्री कॉन्सर्ट्स हैं उसमें हम एज ए म्यूजिक कम्युनिटी गलत, म्यूजिक एंड डांस कम्युनिटी गलत क्या कर रहे हैं, आप समझिए बात को. कि मान लीजिए आज आपकी कीमत है 1 रुपया, मान लीजिए मुझे बाहर की दुनिया 1 रुपया देती है और मैं इस टाइम पे 25 पैसे में बजा रहा हूँ. तो जब वो दुनिया खुलेगी, वो कॉर्पोरेट बोलेगा मेरे को कि आप तो 25 पैसे में बजाते 1 रुपया कब से लेने लग गया. जी बिल्कुल. So I think try to make the money जिनको we all at some time, some point of time, we live on music and we live on music and we live for music, both ways, correct? जी. So we all have our financial limitations होते हैं सबके, या जो भी हैं, सबके अपने अपने levels पे limitations होते हैं, आ ही जाते हैं. जी. अगर बहुत जरूरत है, मैं कहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस कीजिए, कॉन्सर्ट कीजिए, अगर पैसे अच्छे मिल रहे हैं. अब मैं तो डर जाता हूँ, मैं फेसबुक पे देखता हूँ कि 1.5 घंटा का कॉन्सर्ट चल रहा है और वो पूरा आलाप जोड़ झाला फिर विलंबित 3 था पूरा जा रहा है. किस, अरे फ्री में यू गिविंग अवे योर गुरुज, यू गिविंग योर गुरुज, पूरी सीख आप फ्री में दे रहे हो. मैं फ्री, आप 5 रुपए लगा दो प्राइस. मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम सेइंग पैसा, मैं वो नहीं कह रहा आपको. Anything that is free is never respected. Anything that has a cost is respected. जी, very true. आप और मैं किसी रेस्टोरेंट में जाकर कोई फ्री का प्रमोशनल खाना नहीं खाएंगे, डरेंगे कि शायद गंदे क्वालिटी का होगा. हम वो 10-25 रुपए का समोसा खा लेंगे पैसा खुद देकर. सो फ्री हम ना करें मेरे हिसाब से. मैं बड़ों को तो नहीं बोल सकता, मेरे जितने भाई लोग हैं, छोटे भाई हैं जो हैं, फ्री में मत करिए. थोड़ा बस ये 2-3 महीने की बात है, इसको बस अगर हम लोग पकड़ के रखें, सब ठीक हो जाएगा, गॉड विलिंग, इंशाल्लाह. Prachi Shah ji from Bombay says, I totally agree. Prachi Shah ji is a Kathak dancer and she's also working. She also works in movies. Namaskar to her. There are a lot of people are saying that's why I love she's done movies also, no, Prachi ji? I think I've seen her. Has she done films? She's done movies also. She's done films and she's also coming in that. She's also coming in that next movie of Akshay Kumar. I'm forgetting the name. Bomb. Lakshmi Bomb. Fantastic. Tell her, please. Please. She has been on the interview. Seeing the show.
Ji, please thank And her. there is one last question that Murad Bhai always insists on asking. Sanju Bhai had commented, it's always a learning experience even to be near Ustad ji. बिल्कुल. I have no, बिल्कुल उसमें तो मेरा कोई डाउट ही नहीं हो सकता. And आपने शायद वो मूवी देखी हो, नायक. Anil Kapoor was one day CM. One day CM. How lucky. Prachi ji says thank you so much. But he was lucky, but he was opposite Amrish Puri ji. So इनका क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए पूरी पावर दे दी जाए टू चेंज द कल्चर सिनेरियो ऑफ इंडिया, ऑफ द कंट्री, आप क्या चेंजेस लाना पसंद करेंगे आर्टिस्ट्स के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द आर्ट्स? दिस इज देयर क्वेश्चन. मैं तो डर जाता हूँ ये क्वेश्चन पूछता हुआ ही, क्योंकि कुर्सी कौन देगा एक दिन के लिए हमें. आई थिंक सबसे पहले तो ऑडिटोरियम्स हैव टू बी रिकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली. हाइजीन, जो हमारा जो बाथरूम्स हैं, जो अपने म्यूजिक जो हॉल्स हैं, बहुत ही बुरी हालत में, एंड स्पेशली जो डांस जो करती हैं उनको ग्रीन रूम शुड बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन. इट्स इन अ वेरी बैड स्टेट. पहले तो वो दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड. सेकेंडली, ऑल द ग्रेट म्यूजिशियंस, द लेजेंड्स हु आर नाउ, एक उम्र जिनकी बढ़ गई है, जो फिजिकली अब बजा नहीं पा रहे, डांस नहीं कर पा रहे, और जिन्होंने इस कंट्री की शान और इज्जत बढ़ाई है विदेशों में और हिंदुस्तान में, दे शुड बी, आई वुड सैंक्शन 1 मिनट के अंदर एक पेंशन जानी चाहिए उनको. वो पेंशन जानी चाहिए, बिकॉज म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट, ऑल आर्टिस्ट, डांसर्स, म्यूजिशियंस, वी आर अ नेशनल ट्रेजर. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आगे वाली की बात कर रहा हूँ कि एवरीबडी इज अ नेशनल ट्रेजर. We are preserving the art and culture of thousands of years का जो tradition है, we are preserving it and taking it forward. That is a heritage. अंग्रेज यहाँ पे आकर पहले म्यूजिक, डांस, आर्ट, लिटरेचर देखता है, बाद में नाइट क्लब जाकर डांस करता है. You know, but the government should do much more for Indian classical musicians. मैं ये नहीं कह रहा फ्री फंड करो, बट हालात अच्छे करो. अभी जितने गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इनमें एक्चुअली म्यूजिशियंस को बैठाना नहीं चाहिए इनके बोर्ड पर. दे शुड बी कंप्लीटली पीपल फ्रॉम आउटसाइड, सो दैट नो वन इज बायस्ड टू एनीबॉडी. ये ग्रुपिज्म खत्म होनी चाहिए. जो ग्रुपिज्म है ना, अपने इंडस्ट्री में भी तो यही होता है, जो आज सुशांत सिंह जी के साथ हो गया, दैट पीपल ड्रोव हिम अप द वॉल. अपनी इंडस्ट्री में भी होता है, बहुत होता है. एंड आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट इट्स वेरी सैड. डांस में कितना होता है कि 10 लोगों ने डिसाइड करे 11वां इंसान एंटर नहीं करेगा. क्लासिकल म्यूजिशियंस में मैंने देखा कितना होता है कि 5 लोग बैठकर डिसाइड करने कि कौन इस फेस्टिवल से किसको काटो. आई हैव बीन अ विक्टिम, बीइंग अमजद अली खान साहब सन, आई हैव बीन अ विक्टिम, और क्लियर पता है मुझे किसने काटा है ऊपर से. बट यू वेट फॉर टाइम, अपने वक्त का इंतजार करिए, क्योंकि रात दिन यही दुनिया की रीत है. आज आपका नहीं, कल आपका होगा. सो यू हैव टू वेट फॉर टाइम. बट गिवन द पावर, ऑडिटोरियम्स, pensions to senior musicians, and open more and good payment to all the music teachers in schools, music and dance teachers in school. जी, very true. ये होना चाहिए. It should be a qualified and a recognized subject. It is not a hobby. It's not a hobby. Yeah. It's not a hobby. It's not a hobby. High time we start looking up to our art and culture. जी, बिल्कुल. Very true. जी. Very. Sanjukta ji had joined us. She says, please. Hi Sanjukta, how are you? Singh ji. उनसे काफी, and she's also a great dancer. I've had the honor and pleasure of meeting her, and I think she's doing a great job. And she's training a lot of young dancers, which is fantastic. उनके posts देखता हूँ मैं on Instagram and all. It's amazing. Geeta ji is joining us from US. Very different. Very Namaste Geeta ji. Hi Geeta ji. Yeah. Sanju bhai says, "Wow, very good." Shashwati Mandal ji says, "Beautiful conversation." Mahua ji says, "Thank you so much, Aman ji, for a lovely conversation. It was a pleasure having you, and got to learn so much from you. My humble pranam to Amjad uncle and Kakima." Definitely, thank you so much. She herself is a great dancer, and I'm feel very happy and privileged that she's watched this whole interview. Thank you. Unki sister hai Nupur ji. She says, "Thank you so much, Aman ji." How are you? My pranam to Amjad uncle and Kakima. Thank you, Iniji. I will. Nikita ji says, I'm losing
comments here क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर जाते जा रहे हैं. But everybody is very Lakshmi Rao ji says Lakshma ji Rao ji says very well said again from thank you so much. Resonates so much and taking away beautiful thoughts on the importance of modesty from this conversation, redefining what success of an artist should look. Very beautifully. Oh, thank you. Thank Vrinda also, and I'm seriously very proud of her, the way she's going. Even Nikita, I'm very proud of. She's also doing a great job. They all are such talented. All of them are so talented. You know, एक time था, मैं आपको बताऊं जब जैसे उमा शर्मा जी हैं और एक उसके बाद एक गैप आया मेरे हिसाब से, नाम आते नहीं थे ज्यादा. अब ऐसे so many great dancers, चाहे ओडिसी हो, कथक हो, भरतनाट्यम हो. anyway, आपको ज्यादा पता होगा डांस के और क्या फॉर्म से बताइए जरा मुझे. सत्रिया है, कुचिपुड़ी, कथक. अब आपसे बैठकर तालीम लूंगा मैं बैठकर. और मैं खुद भूल गया हूं, और मैं खुद ही भूल गया हूं नाम कौन से थे. आपको तो सारे कथक की तिहाइयां वहियां सब याद हो गई होंगी, सारे बोल बाल बाट. गिनती तो करता रहता हूँ कि कोई सम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन no, but you have to know dance yourself little bit in your unconscious mind to take that photograph in the right moment, na? I think. हाँ जी, वो हेल्प कर देता है थोड़ा सा. Yeah. फतेह भाई joins now, I think. आदाब अमान भाई and इनी सिंह आदाब जी. And मुराद भाई की चिट्ठी आई है. अमान भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़िश टेल मी अबाउट इट सीरीज में आप आने के लिए, मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से. काफी सारे नाम है उसमें. मिथिलेश भाई का भी है. के साथ आपका शुक्रिया भाई. एंड उसे मैंने देखा था शो महुआ जी, जब आपने इंटरव्यू किया था. आई केम फॉर 10 मिनट्स बीच में. आई सॉ अकरम खान साहब एंड देन हमारे पंडित मिथिलेश कुमार झा साहब, मिथिलेश भाई और मुराद भाई और संजुक्ता जी, एंड दे ऑल वर टॉकिंग. इट वाज नाइस, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस and really enriching conversation. Thank you for this. Shivali, thank you. I'm waiting for you to come back to India from Bangladesh. आइएगा, please message कीजिएगा. Aishwarya Natarajan says thank you so much Aman bhai. Hi Aishwarya, how are you? जी. बट सब भाई लगा देते हैं आगे ना. इसलिए तो शादी नहीं हो रही ना, आप समझ नहीं रहे ना, एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर. एक हमारी क्लासिकल फील्ड की ये चीज भी है, जिससे भी बात करनी है भाई जरूर लगाना है. हाँ, वो बॉम्बे का भाई बन जाता है क्लासिकल म्यूजिक में बहुत जल्दी. नहीं, बट ये भी प्यार है. देखिए, ये भी प्यार है सबका, कि सबका प्यार मिलता है. देखिए भाई, once I was asking my father, मैं नाम क्या करूं, अमान अली खान बंगश लिखूं, अमान अली खान लिखूं, अमान अली बंगश लिखूं. अब कहते बेटा, लोग के मुंह पे खाली अमान चढ़ जाए उसकी दुआ करना, वो अली खान बंगश जाने दो, पहला नाम चढ़ जाए मुंह पे, which is so important भाई. जी, वेरी ट्रू. मुझे याद है जब आपने मेरे नाम के आगे सारा वो घी शहद सब जो डाल दिया था, आई जेन्युइनली मेंट इट कि आई डोंट वांट सो मच ऑफ. भाई देखो, वो आपका प्यार है, मोहब्बत है, बट माय फादर इज अ माइस्ट्रो, माय फादर इज उस्ताद, माय फादर इज खान साहब. When those adjectives are used on my father or on any great musician, हम उनके आगे क्या है? कुछ भी तो नहीं है. आधी जिंदगी तो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में हमने निकाली है, बिकॉज यू नो इतना उनका तेज है. You stand next to the sun, you also get a lot of brightness onto yourself. So अब ये कि बस I just want to play Sarod and play it in a way that my father and mother proud of me. नाम हो ना हो, ये तो ये देखिए, नाम हो ना हो, ये परमात्मा के ऊपर है. It is just that people accept you, people love you, and people keep calling you. That's as simple as it gets. There's no other science attached to it. Sanjukta ji says Aman Ali Bangash ji is not only a blessed musician but also a wonderful soul. Had the opportunity to be sharing the same theater in Paris. Wow. Ji, I remember very well. And we all had tea, coffee, and all together. मुझे याद अच्छी तरह. Arushi says namaste to Aman ji and Inichi. Namaste Arushi ji. Thank you so much. Namaste. Thank you. There are a lot of comments still coming, but Sanju Sahai ji ka comment है, thank you Ini bhai and Aman bhai, Murad bhai and Mahua ji. Thank you Sanju bhai, thank you so much for staying here and joining. Sanju bhai, when is he coming to India? Ask him that first. जी संजू भाई, अगर आप हैं तो जल्दी से कमेंट कर दें कि आप इंडिया कब आ रहे हैं. And Ritika Chaudhary ji says, wow, what a wonderful session. It was actually very humbling and very. I still don't know. जब मैं ये रिकॉर्डिंग बाद में देखूंगा तब मुझे पता लगेगा कि आप सच में. No. You're show. Your family are भाई हैं, बड़े भाई हैं, and it's a long journey together, and we'll always stay together.
Sanju bhai says soon. काफी लंबा चलो। soon है लेकिन उस सून में काफी गम है और इंतजार है, मैं समझ गया, ठीक है। and Vrinda says thank you so much, so much Thank for you, today. Vrinda. Thank you so much. God. Thank you. And thank you, Aman bhai, again from myself, and I'm really looking forward to meet you soon. And this Pakka. has been such a 1 घंटा 20 मिनट हो गए हम. We are only 45 minutes over. Urban Turban Singh ji का एक comment है, very well said, Aman, you're truly the future of the Sarod, and it's coming from you, not just my research, but the quality of music you are inheriting. He is very So sweet, but I am just one of them. I think there are many amazing Sarod players today working very hard, and everyone is doing, mashallah, so beautiful. And yeah, it's लंबा रास्ता है, हम सबको put our head down and keep walking. Keep your focus on the path. I again want to thank you, Bhaijan. Thank you so much. नहीं, अच्छा, एक बात और कहना था. सो मुझे किसी ने पूछा, वेयर कुर्ता या क्या, मैंने टी शर्ट ऑफ ड्यूटी चल रहा है आजकल, तो कुर्तों में तो संक लगा हुआ है. सो नाउ वी आर ऑफ ड्यूटी, सो टी शर्ट. You know, thank you so much. I was going to wear the I play the Sarod from your brand. हाँ. But then I thought कि अगर मैं वो आपके सामने पहन के बैठ जाऊंगा तो नहीं. मैं सोचा मैं भी, I thought I'll also wear it, but फिर मुझे लगा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा खुद ही प्रमोशन हो गया. नहीं, anyway, it's a pleasure, and I want to thank everybody for watching and for giving all your lovely comments, and lots of love to everyone, and please keep loving me. That's all I can say. शिवांगी जी says नमस्कार अमान जी. नमस्कार. एक कमेंट सिद्धार्थ भाई ने किया था, but I forgot to take such a humble soul. उन्होंने पहले लिखा था God's own child. I remember that. Siddharth bhai has done a lot for Indian classical musicians. I'm very proud of him as a brother. I have also played for him once with my Ayan bhai, and once I've accompanied my father. But having said that, he has really promoted Indian classical music, and he's doing a lot for Indian classical young musicians, which is amazing because a lot of people don't do that anymore. Ji. Prashasti ji says this was amazing, unlike all the other journalism, sensationalism based interviews. Looking forward to more of these. Thank you so much. All Aman bhai's magic. बहुत कम लोग हैं जो, I mean, इतनी लंबी वो हैं, तो उस नामों में एक अमान भाई का नाम बहुत नजदीक है हमारे दिल के. प्यार है फतेह भाई का, प्यार है. बहुत शुक्रिया भाईजान. शुभ भाई पता नहीं अभी आए हैं कि इन्होंने अभी कमेंट किया. नमस्कार भाईजान. पंडित जी नमस्कार. Komal Kushwani ji. I've spent some nice time with Shubh bhai also. Yeah. I saw one of your pictures with Shubh bhai in China, I think, standing next to a Lamborghini or some supercar. किसी और की थी, गाड़ी मिली, हमने बोला चलो थोड़ा लाइक्स बढ़वा लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं गाड़ी के साथ दोनों भाई. Sanjukta ji says you both look great in black. Of course, this comment is for you. Mera to... Thank you. No, please. Thank you so much, Sanjukta ji. Thank you so much. Thank you, Bhaijan, again. Thank you. And Mera Kakiman Swaji ko pranam. And thank you so much. Thank you for joining. Good night. Thank you. Bye.